Hi future birds, welcome back to my channel. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 12th PSCB ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ which is electrostatics unit ਹੈ. ਚੈਪਟਰ is electric charges and fields. ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ electrostatic potential and capacitance. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ electrostatics ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ. So it is the branch of physics which deals with the charges at rest. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11th 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਟੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਐਟ ਰੈਸਟ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਨੇ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੀਨਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ, static means at rest. Next is frictional electricity. What is frictional electricity? The electricity developed on objects when they are rubbed with each other is called frictional electricity. देखिए एक रॉड ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰॉड ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੂਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਟੈਪ ਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੀਏਟ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ. Okay, next ਗੱਲ ਕਰਦੇ electric charges ਦੀ. So what is electric charges? Just give me a second. Yes, so the additional property of protons and electrons which give rise to electric force between them is called electric charge. Electric charge ਇੱਕ scalar quantity ਹੈ, scalar ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which has magnitude but no direction. So electric charges, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ proton ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ electron ਹੈ. ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ. ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਾਰੇ. ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੋਜ਼ੈਸਿਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ ਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੋਜ਼ੈਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਈ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸੇਮ, ਨੇਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ. ਔਰ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1.6 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲੰਬ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੂਲੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ. ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਕਲਰ. ਯੈਸ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਡੈਟ ਓਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਦੋ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, ਵੂਲ ਜਾਂ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਵੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀਸ ਆਫ ਸਿਲਕ ਕਲੋਥ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ. ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਔਰ ਵੂਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ. ਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਟ ਦੀ ਫਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਫਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਡ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗੀ ਸਿਲਕ ਅਤੇ ਵੂਲ ਕਲੋਥ ਨੂੰ. ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਾਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਡ, ਸਿਲਕ ਜਾਂ ਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਗਏ ਸੀ ਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ. ਕੁਛ ਚਾਰਜਿਸ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਟਰੈਕਟ. ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਲਗਾਈ, ਟੂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਯਾਨੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਚਾਰਜਿਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਔਨ ਕੰਟੈਕਟ. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੋਥ ਐਂਡ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ. That's the whole point. The property which differentiate the two kind of charges is polarity of charge. ठीक है. ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਜਿਸ were named as positive negative ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, by American scientist Benjamin Franklin. ਐਂਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਦੀ ਫਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿਲਕ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ MCQ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼
नॉट सो इंपोर्टेंट, वैसे पूछ भी लेंदे इन्ना, ठीक है डिस्कस करते हैं आप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। बस इन्ना दसेगा कि मेरी बॉडी ते चार्ज है कि नहीं है। कंस्ट्रक्शन सिंपल है दी, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड, आ दिख रही है, दिस इज द मेटल रॉड विच इज़ फिटेड इन इंसुलेटिंग बॉक्स है। पूरा जो बॉक्स है एक ही है, इंसुलेटिंग बॉक्स है। मेटल रॉड हैज़ मेटल नोब एट इट्स टॉप, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਨੋਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। टू गोल्ड लीव्स आर ऑल्सो अटैच्ड एट बॉटम ऑफ द एंड ऑफ द रोड। आ मेरी रॉड अंदर तक जा रही है, रॉड मेरी उरे खत्म हो गई, एंड दे विच मैंने दो गोल्ड लीव्स कुछ इस तरीके ना लगाई हुई ने, और बाहर मैंने ग्लास की विंडो रखी है ताकि विजिबिलिटी होए। सो वर्किंग की है, सिंस इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, सो थ्रू इट वी कैन फाइंड वेदर अ बॉडी इज चार्जड और अनचार्ज। सो आप की करांगे, ओके, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਮੈंने ਚਾਰਜ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਨੋਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਆਬਜੈਕਟ ਨੋਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਔਨ ਦ ਟੋਪ ਆਫ ਦ ਰੋਡ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। प्लस चार्ज ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲਿੱਤੀ, अगर ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ प्लस ਤੋਂ प्लस ही फ्लो ਕਰੇਗਾ। ਆ प्लस चार्ज ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ, मैंने ਇਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ प्लस ਚਾर्ज ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ट्रांसफर ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, लीव्स तक पहुंच गया। सो होएगा कि फ्लो करके वो लीव्स तक आ गया। बोथ द गोल्ड लीव्स विल हैव सेम चार्ज क्योंकि वो कनैक्टेड हैं दोनों, सो जिन्ना पॉजिटिव है तो उन्ना ही इधर आ गया। अगर दोनों पॉजिटिव है तो की करेंगे, रिपेल करेंगे। सो दे विल रिपेल एंड डाइवर्ज। जिन्नी भी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जिन्ने ज़्यादा चार्जेस डेवलप होंगे उन्नी ज़्यादा वो दूर एक दूसरे तो रिपेल होंगे, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। मोर द चार्ज मोर विल बी द डाइवर्जेंस। एप्लीकेशंस की हैं, पहले तो वही डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज भाई कितना है। बॉडी अंडर टेस्ट इज टच्ड विद द मेटल कैप, अगर डाइवर्ज होगी तो चार्ज है, नो इफेक्ट है तो अनचार्जड है। दूसरा ਇਹਦਾ फायदा की है कि ਆਪਾਂ नेचर ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं। हाउ, देखो अगर मेरे को एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और मैंने बॉडी ਨੂੰ हटाता, मैंने इलैक्ट्रोस्कोप ਨੂੰ चार्ज किया, मैं बिल्कुल पॉजिटिव वाली रॉड लैके गई, लीव्स ਤੇ पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, लीव्स जो डाइवर्ज हो रही सी नाल दी नाल। ना बॉडी अंडर टेस्ट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल कैप। मैं हुण एक्स लैके गई, कोई भी एक्स रॉड लै लो, कोई भी बॉडी लैके गई जिते मैं चार्ज पता करना है पॉजिटिव है नैगेटिव है, मैं उसनू अपने आह उपर नॉब तक लै गई इलैक्ट्रोस्कोप दी। होएगा कि इफ द लीव्स डाइवर्ज फरदर, अगर लीव्स मेरी होर डाइवर्ज हो गई, यानी कि इस बॉडी का पिछली रोड ਦੇ ਨਾਲ सेम चार्ज ਸੀਗਾ, अगर मेरिया पत्तियां ने, पत्तियां तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उपर होर पॉजिटिव आ गया तो होर रिपेल करेंगे, डाइवर्जेंस बढ़ेगी, यानी कि सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव। अगर क्लोजर आ गई, नेड़े आ गई तो ऑपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव। नैक्सट इज आप ये भी पता कर सकते हैं बॉडी मेरी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। दो इलैक्ट्रोस्कोप लै लो, एक इलैक्ट्रोस्कोप ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, यानी कि ਉਹਦੀ ਲੀਵਸ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। अगर तो मेरी लीव्स ऑफ अदर इलैक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज होगी, दूजे की भी डाइवर्ज होगी, यानी कि मेरी बॉडी कंडक्टर है क्योंकि चार्ज जो है फ्लो कर गया, दोनों डाइवर्ज होगी, लेकिन दूसरे इफेक्ट इलैक्ट्रोस्कोप से कोई इफेक्ट ही नहीं आया तो मेरी बॉडी इंसुलेटर है। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। मेरी कोई भी चार्ज बॉडी है उसनों अगर मैं दूजी बॉडी ना टच करा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक आराम ना एक मस्त स्फीयर पे है विच इज़ अनचार्ज, इतने कोई चार्ज नहीं है, मैं एक रॉड लैके गई, इतने पॉजिटिव चार्ज सीगा, मैं जाके इतना टच करती। फ्रिक्शन च आप टच नहीं करते, फ्रिक्शन च आप रब करते हैं। कॉन्टैक्ट मैंने बस टच करवाती, कंडक्शन कराने लिए आई जस्ट मेक श्योर कि सिर्फ इन्हों टच करे। सो मैं अपनी रॉड लै गई, इन्हों टच करवाती। होएगा कि लेट्स से ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 कूलम का चार्ज है आफ्टर कॉन्टैक्ट। अगर आप रफ, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल नहीं है वैसे हाफ ऑफ चार्ज होंगे अगर दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हो। सो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर होएगा और इतने सेम पोलैरिटी का चार्ज आएगा। फ्रिक्शन च की सीगा, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स विच फ्रिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर इधर +2 कूलम का चार्ज डेवलप होया तो इधर -2 कूलम का होएगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਅਨਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਡ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ इधर +2 कूलम होएगा जो भी है, इधर भी प्लस च कुछ घट आएगा। मैं नहीं कह सकती इस अपोजिट आएगा, इस अपोजिट नहीं आएगा, इस सेम पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ओके में होएगा वैसे आप डिस्कस करांगे अगर कंडक्शन ते अगर क्वेश्चन होया था। नैक्सट इज व्हेन अ चार्जड ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू अनदर ऑब्जेक्ट। हुण आंदा इंडक्शन, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ तक की पढ़ रहे सी मैथड्स ऑफ चार्जिंग, किन्ने तरीके नाल ਆਪਾਂ किसी भी बॉडी ਨੂੰ चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन,
कंडक्शन इंडक्शन फ्रिक्शन दस चुकी हैं अपोजिट चार्ज डेवलप करेगा कंडक्शन जिस टच करके छड़ दो सेम पोलैरिटी का चार्ज जो है वो देगा तीसरे च आप टच ही नहीं करांगे पहले च रब किया दूजे च सिर्फ टच किया तीजे च आप टच ही नहीं करांगे सिर्फ नेड़े लेके जावांगे विल ब्रॉट क्लोज टू अनदर ऑब्जेक्ट टच नहीं करांगे ठीक है द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डजंट लूज एनी चार्ज ऑफ इट इत्थे की हो रहा सीगा जिन्ना किधर गया मेरी एग्जाम्पल मैंने इरेज करती सी ओके अगर फ्रिक्शन च की सीगा अगर एक कोल +2 डेवलप होगा दूजे कोल -2 कंडक्शन च की हो रहा सीगा कि अगर मेरे को +1 आ गया ਇਹਦੇ प्लस 0.5 आ गया समथिंग लाइक दैट सेम पोलैरिटी का चार्ज हो रहा सी इंडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेरी ओरिजिनल बॉडी है उससे कोई भी चेंज नहीं होएगा उसके चार्ज से कोई फर्क नहीं पेगा क्यों क्योंकि लेट से मैं एक रॉड ਨੂੰ एक स्फीयर ਦੇ ਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ +3 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਚਾਰਜ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ फ्रिक्शन और कंडक्शन की गल कर चुके इंडक्शन च मैं इदा कह रही सी कि जिमें मेरे को एक रॉड है +3 कूलम उस ते चार्ज है आ मेरे को एक स्फीयर है अनचार्जड मैं इस रॉड ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾऊंगी पर टच नहीं करूँगी तो थोड़ा ਜਿਹਾ दूर रखूँगी तो इससे खुद का कोई चार्ज चेंज होएगा नहीं क्योंकि चार्ज उड़ के तो जान तो रहा तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਫੀਅਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਫੀਅਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ पर इस चार्ज डेवलप किमें होएगा ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सो द अदर एक्सट्रीम एंड ऑफ न्यूली चार्ज ऑब्जेक्ट डेवलप्स पोलैरिटी सेम एज दैट ऑफ द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब देखो आ मेरी +3 कूलम की रॉड है मैं ਇਹਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਅਨਚਾਰਜਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਐਵਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਿਊਟਰॉन्स ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ हैं अनचार्ज का मतलब बैलेंस कर रहे हैं जिन्ने प्रोटोन उन्ने इलैक्ट्रॉन सो होएगा कि ये +3 कूलम की रॉड है ये प्लस वाले नू रिपेल कर देगी माइनस वाले नू उरे लिया देगी पोलैरिटी डेवलप कर देगी क्योंकि प्लस वाले जो माइनस चार्जिस नू अट्रैक्ट करेंगे इधर इकट्ठे हो जाएंगे कॉन्सनट्रेट हो जाएंगे पॉजिटिव नू रिपेल करेगी वो ऑपोजिट साइड से कॉन्सनट्रेट हो जाएंगे इस तो बाद का प्रोसैस आप जो है नैक्सट PDF डिस्कस करते हैं जस्ट लैट मी चेंज द PDF ओके सो डिस्कस करते हैं लेट पूरे कर लेते हैं मैं कितने सी कि मेरे को एक रॉड है जिदे उत्ते प्लस चार्ज है एक स्फीयर है जिदे उत्ते कुछ चार्ज नहीं है प्लस ने प्लस वाले रिपेल करके दूर भेजते माइनस वाले अट्रैक्ट कर ले उस तो बाद एक्चुअली अर्थिंग कर देंगे ने अर्थिंग इदा आप अर्थ नाल कनैक्ट कर दें सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ अपने नाल ले जाती है जे अर्थ अपने नाल सारा चार्ज लेगी तो अपने को बॉडी ते की बचा नैगेटिव उस तो बाद आप रॉड ਨੂੰ भी दूर ले जाएंगे तो नैगेटिव जो आराम ਨਾਲ डिस्पर्स हो जाएगा पूरे स्फीयर ਤੇ ठीक है तो ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंडक्शन च इदा डिवेलप होता है ठीक है अगे चलते हैं आ थोड़ा मैं करा चुकी हाँ लाइक चार्जिस रिपेल करते हैं अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं इन अपन लोड़ नहीं है अपने मेन काम की गल करांगे आप डिस्कस इंट्रोडक्शन ही है हाँ एक चीज़ जो तुमने याद रखनी है वो की याद रखना इलैक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की क्योंकि इट एक्सपीरियंस देखो मैं दसदी होंदा की है ना जो इलैक्ट्रिक चार्ज है वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है इस करके अगर आप इनू किसी भी इलैक्ट्रोमैगनैटिक फील्ड च रखांगे ये उपर फोर्स लगेगा अगर ये गल नहीं समझ आ रही तो ओके छड़ दो आप डिस्कस करनी है अगे डिटेल्स करनी है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव नैगेटिव कॉमनली कैरियर ये प्रोटीन इलैक्ट्रॉन ही होंगे ने प्रोटोन इलैक्ट्रॉन वाई साइड प्रोटीन ओके नैक्सट इज ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰजेस ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ फ्रिक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ फ्रिक्शन 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ कि अपने को एक 2 ऑब्जेक्ट्स है लेट से कपड़ा है एंड एक रॉड है ठीक है मैंने की किया लेट से इसते +2 डेवलप हो गया इसते लेट से -2 डेवलप हो रहा तो चार्ज आ कितों रहा रब करन नाल सो एक्चुअली हुंदा की है एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन ही चार्ज का कारण बनते हैं यानी कि इत्थों कुछ इलैक्ट्रॉन उठ के इधर चले गए किन्ने चले गए उसका फॉर्मूला होंदा पर डिस्कस करांगे कुछ इलैक्ट्रॉन उठ के इधर चले गए तो इधर नेगेटिव इंक्रीज होगा दैट्स वाई इट हैज़ डेवलप्ड नेगेटिव चार्ज कुछ इलैक्ट्रॉन्स इत्थों चले गए यानी कि इत्थे हुण पॉजिटिव ज़्यादा हो गए इलैक्ट्रॉन घट गए सो दैट इट डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज सो एक चीज़ याद रखनी है डेफिशिएंसी यानी कमी ऑफ इलैक्ट्रॉन ये किहड़ा चार्ज बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस इलैक्ट्रॉन्स वध गए तो नेगेटिव चार्ज बनाएंगे गलती नहीं करनी ठीक है
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰजेस, ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿकेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक्चुअली ना, अगर मैंने पता करना है एक श्योर शॉट, अगर मैं कहूँ टेस्ट कि मेरी बॉडी जो है उस पर चार्ज है नहीं है, लेट्स गिव एन एग्जांपल। मेरे को एक स्फीयर है, एक मेरे को फिर तो रॉड है, होएगा कि अगर मैं गल करा थोनू MCQ या फिलिप्स ਵਿੱਚ पूछ सकते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ इलैक्ट्रीफिकेशन इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। क्यों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल करते हैं मैम, माइनस प्लस या प्लस माइनस आपस च अट्रैक्ट करते हैं, राइट। हजे तक आप इन्ना ही पढ़े, लेकिन अट्रैक्शन थोड़ा सा धोखा दे देती है। अट्रैक्शन जो है कई बार चार्ज और अनचार्ज बॉडी च भी हो जाती है। किवें? लेट से मेरी आ बॉडी अनचार्जड है, इतने कोई चार्ज नहीं है, इतने पूरी रॉड ते नैगेटिव चार्ज का भरया हुआ है, ठीक है, पूरी रॉड ते नैगेटिव चार्ज है। तो होएगा कि अगर एक्चुअली हुंदा कि कई बार ना नैगेटिव चार्ज की वैल्यू इन्नी ज़्यादा होंदी है कि न्यूट्रल रॉड दे विच भी डिस्पर्जन हो जाती है, न्यूट्रल रॉड दे विच भी चार्जिस सैपरेट हो जाते हैं। ये माइनस इन्ना स्ट्रोंग होंदा है कि प्लस नूं अट्रैक्ट कर लेंदा है, नैगेटिव नूं रिपेल कर दिंदा है। तां हुण देखा जाए, अगर आप सिर्फ इन्नी क चीज़ ते गौर करिए, इत्थे तो अट्रैक्शन शो कर जाएगा, रॉड ते नैगेटिव, स्फीयर ते राइट साइड ते रॉड दी साइड ते पॉजिटिव आ गया, ये तो अट्रैक्शन शो कर जाएगा। दैट्स वाई वी कैन से कि समटाइम्स अट्रैक्शन मे ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन अ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, और कई बार दो अपोजिट चार्ज बॉडी च भी अट्रैक्शन हो जाती है। रिपल्शन कदे धोखा नहीं देती, रिपल्शन सिर्फ यही दो केसिस च होंदी है। अट्रैक्शन एवें भी हो सकती है, अगर मेरे को दो अपोजिट चार्ज की बॉडीज़ हैं, अगर मेरे को इधर भी नैगेटिव है इधर भी नैगेटिव है, इन्हां च भी अट्रैक्शन हो जाती है कई बार, ठीक है। नैक्सट चार्ज स्केलर है, चार्ज नूं ट्रांसफर किया जा सकता, तो आप देख ही चुके हैं, कपड़ा, सिल्क, ग्लास रॉड, पता नहीं की रब करवा के तुहानूं पता चल चुका है, ठीक है। नैक्सट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज हवा च थोड़ी रहेगा, कोई मास तो होना चाहिए जिहदे पर चार्ज है। मास चार्ज भी ना खुश रह सकता है, कोई भी, इट्स नॉट कंपलसरी कि हर जो भी चीज़ च मास है वो चार्ज होना चाहिए। मास अपना चार्ज तो बिना एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज नूं मास चाहिए एग्जिस्ट करने लिए, ठीक है। अगे तुहानूं एक एक्टिविटी दिती हुई है छोटी जी, एक बार मैं दस ही दिनी हाँ, सॉरी एक्टिविटी नहीं, एडिटिविटी। एडिटिविटी ये है कि मेरे को जस्ट एक सिस्टम है, लेट्स कंसिडर अ सिस्टम, इस 3 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, मैग्नीट्यूड Q1 Q2 Q3 है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आप डायरैक्ट ऐड करके लिख सकते हैं, Q1 Q2 प्लस Q3 नॉर्मली ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि चार्जेस की कोई ऐसा डायरैक्शन नहीं है, मैं कोई वैक्टर सम लगाने नहीं बैठूंगी कि हाँ मैं वो वैक्टर सम लगा रही हूँ, नहीं, सिंपली ऐड कर सकते, जिन्ने भी हैं नॉर्मली ऐड करते जाओ, इट्स नॉट अ बिग डील। बस इन्ना है कि पॉजिटिव नैगेटिव देख के माइनस प्लस करना है, जरूरी नहीं नैगेटिव है उन्होंने प्लस ही करना है, नैगेटिव नैगेटिव च माइनस होएगा, ठीक है ना। अगे चलते हैं, लेक्चर चल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज की गल करिए, ब्राइट पेन चूज कर दो, ओके। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लिखनी है डेफिनेशन, द चार्जेस आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हुण तक तो तुहानूं याद हो गई होगी, साइंस लेके तो ये गल तो हर चीज़ चेप दिंदे हैं बच्चे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जिस दी जो प्रिंसिपल है की कहता है, द प्रिंसिपल सेज कि चार्ज कभी भी बनता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये हमेशा ट्रांसफर होता है एक बॉडी तो दूसरी बॉडी ते। वैन टू ऑब्जेक्ट्स अपने को हैगे हैं, वन हैव सम चार्ज और दूसरे को कोई चार्ज नहीं है, उन्होंने कॉन्टैक्ट च लियाओगे तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा सिंपली। एंड इनफैक्ट ये उदों तक होंदा रहेगा जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती पूरे सिस्टम दे विच। सो कोई भी चार्ज क्रिएट या लॉस्ट नहीं होंदा, बस इन्ना ज़्यादा चार्ज वाली बॉडी तो घट चार्ज वाली बॉडी च ट्रांसफर हो जाता है। नैक्सट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिक एग्जांपल, थोड़े को एक कार है, तुसीं चले हो शिमला घूमन, लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल, शिमला घूमन चले हो, तुसीं फैमिली मैंबर्स या फ्रेंड्स नूं बुला रहे हो, ठीक है। एक बंदा आ गया, दो आ गया, लेट्स से बस है, ठीक है, जिन्ने मर्जी बुला सकते हो, इनफाइनाइट बस है, ठीक है। उस तो बाद मैं कमा कोई अद्धा बंदा आ सकता है, या मैं कमा 1/4 बंदा मैं नाल लेके जा सकती शिमला, कट के तो नहीं ले सकती। या तो बंदा पूरा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, या आएगा या नहीं आएगा। अद्धा बंदा का तो कोई सीन नहीं है कि कली मुंडी उठा के लेगी, मैं कली बाँह उठा के लेगी। सो दैट इज़ अ थिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज कहता है
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਡੋਨੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਈ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਡੇਢ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ Q ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ NE, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈ ਚਾਰਜ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1.6 ਇੰਟੂ 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, N ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ, 3.5, 4.5, 10.5, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, N ਜੋ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਮਾਸ। ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਵਿੰਗ ਮਾਸ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸ। ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਮਾਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਸਪੀਡ ਕੰਪੈरेबल ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਉਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ, ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਪੈरेबल ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਕੋਜ਼ ਕਰਦਾ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਮਾਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਵੇਟ 10 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 10.5 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਵੇਟ 10.684, ਕੁਛ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦਆਊਟ ਚਾਰਜ। ਮਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? there is only force of attraction between the masses. So let me change the PDF, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਲਾਅ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ, ਯਾ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ? ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ। ਸੋ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੂਲਮ ਥੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਸੋ what he gave was the law. The law said the force of attraction or repulsion between two stationary point charges, very important. Coulomb law ਦੀ limitation ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ point charges ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹੀ? अगर मैं फोर्स कढ़ना है तो जो फोर्स है किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और माइनस प्लस नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और डिस्टेंस आप सेंटर तो लेने, कोने तो नहीं लेंगे। ठीक है, सो इतना फॉर्मूला बनया पहला प्रोपोर्शनल दी फॉर्म च Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कॉन्सटेंट लगाया K जिन्होंने आप कूलम्स कॉन्सटेंट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्सटेंट कहने हैं। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फटाफट जिथे बैठे हो, चाहे लाइब्रेरी बैठे हो, मेरे पीछे बोलो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद होना चाहिए, ईजी है वैसे, इतना टफ है नहीं सीगा जिन्ना मैंने पीछे बुलवा के करवाया है। नेक्स्ट इज K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਅਗਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ K ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਓਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ? 9 × 10⁻9 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆयर ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਆयर। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਇਜ਼ ਦ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ F ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਆਇਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। K ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਰਾਈਟ, ਮੈंने ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
Q1 Q2 ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, F नीचे आ गया, 4 पाई नीचे एज इट इज सीगा R स्क्वायर। अगर मैं दी यूनिट कड्डा था कूलम कूलम, चार्ज दी यूनिट किंदी कूलम यानी C स्क्वायर, और नीचे F दी यूनिट किंदी न्यूटन, और 4 पाई दी कोई यूनिट नहीं होंगी, R स्क्वायर दी मीटर स्क्वायर, C स्क्वायर n-1 m-2। ठीक है जी। उस तो बाद है वैल्यू यदि एप्सिलॉन नॉट दी अगर कदे यूज़ करनी पै जाए नॉर्मल वाली फ्री स्पेस जी अपनी नॉर्मल आप लैके चलते अगर कुछ स्पैसीफाइड नहीं है, दैट इज़ 8.854 इंटू 10⁻12 यूनिट आप डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट इज डायमेंशनस ऑफ परमिटिविटी। डायमेंशनस यार यूनिट तो कढ़ लो, C स्क्वायर n-1 m-2 किवें कढ़ोगे? सिंपली कूलम्बिस चार्ज दी जो डायमेंशन होंगी 80 होंगी है, वैसे छोटी क्लासेस च पढ़ाया जाता है, 11th पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो वाई आई एम डिस्कसिंग इट हेयर। फोर्स दी यूनिट होंगी ml2t-2, सॉरी ml2 नहीं, वो वर्क दी होंगी है, वर्क और एनर्जी दी, mlt-2, और m-2 यानी कि l-2। सो लिख लो यदि a एज इट इज़ आएगा, t दी कितनी बन रही है, t-1 बन रही है। there is some mistake I guess, I did some mistake। रुको रुको रुको, I did some mistake। दोबारा आप प्रॉपर ही कर लेने, आप क्यों यूनिट तो कर रहे हैं। एनीवेज आप एप्सिलॉन नॉट दी कर रहे हो, फॉर्मूला की बना सी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई 4R स्क्वायर। 4 पाई दी लोड नहीं है डायमेंशन के विच, Q स्क्वायर दी बनेगी A स्क्वायर। अच्छा मैंने स्क्वायर नहीं लिता सी ना उस टाइम, ठीक है ताई गलत आ रहा सी, मैं डिस्कस कर रही थी, डिस्कस करती मैं सॉल्व करने लगी। फोर्स दी आएगी mlt-2 और R स्क्वायर दी आएगी L स्क्वायर, तो ये आ गई A2, T दी आ जाएगी -4 सॉरी +4 ऊपर जाएगा ना, और L दी आ जाएगी -3। ठीक है, A2 और m-1 भी आएगा आसेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में तुहानूं दस्सिया सी पॉइंट चार्जिस होने चाहिए, चार्जिस रेस्ट पे होने चाहिए, और एक होर कंडीशन होंगी है कि जो सैपरेशन बिटवीन द चार्जिस है वो न्यूक्लियर साइज तो ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक न्यूक्लियस जो है वो दूजे दे नाल ही मतलब चिपकिया होया है, बेसिक डिस्टेंस दूर ही होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर तो दूर होने चाहिए हैं, ताकि अगर डिस्टेंस उस तो घट होएगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक्ट करेगा, फिर तो दोनों न्यूक्लियस ही आपस च करन लग जाएंगे इंट्रैक्शन। ये बारे आप डिस्कस करांगे वैसे थोड़ी लास्ट वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स इन्होंने बारे आप डिटेल डिस्कस करांगे। नैक्सट इज यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज, वैसे टॉपिक हुण आ रहा है, कूलम आप डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज की यूनिट कूलम होंगी है। हाँ अगर एक कूलम की गल करिए, एक कूलम दे विच दो एक कूलम के चार्जिस है, इन्हों के विच आपस च कितना फोर्स लगेगा अगर मैं इन्हों 1 मीटर की दूरी पर रखता, सो दैट विल बी 9 × 10⁻⁹ सॉल्व करना है। ठीक है, होमवर्क है वैसे ईजी है। ठीक है, डेफिनेशन देख लो। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की होंगे, डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली हुण तक आप जो वैल्यू लेके चल रहे हैं ना, आप मान रहे हैं कि वैक्यूम या एयर, मैं गल की सी ना एयर दे विच आप फोर्सिस लेके चल रहे हैं जो आपको कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन अगर कोई तुम मीडियम यूज़ करो, डाइलैक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम, कोई भी मीडियम यूज़ करो, तो उस मीडियम की परमिटिविटी नूं आपां यूज़ करना है फॉर्मूला च, फोर्स तो दिखाना है कि मैंने ऑयल करता वाटर करता तो वह की इफेक्ट होया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस फोर्स नूं उस नाल डिवाइड कर देना उसकी परमिटिविटी के नाल। ठीक है, अगे चलते हैं के डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे मीडियम का। सो आपको पता लग गया मेरा जो एफ मीडियम के विच आएगा वो की आएगा F0/K, बिना मीडियम तो फोर्स नूं उसकी परमिटिविटी ना मीडियम की परमिटिविटी ना डिवाइड कर दो, थोड़ा मीडियम का फोर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आ थोड़ा आ गई फोर्स की बजाय अगर तुम यही चीज़ वो कढ़नी है डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंटली तो कह सकते हो E/ε0। मतलब कि यदा एक्चुअली फॉर्मूला इदा होंगे E = K/ε0। मतलब कि है थोड़ा सा मेरे लिए भी कन्फ्यूजन सी, जो मैं पहली बार पढ़िया सी अपने टाइम पे, तो मैं आराम से टाइम दे के दस देनी E/ε0 K तिना की फर्क है। ε0 एक्चुअली ε0 ये टर्म सी फ्री स्पेस एयर के लिए। ठीक है, कॉन्सटेंट दिस इज़ द कॉन्सटेंट K, इनू आप डिफाइन करते सी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी उसनों फिर डिवाइड कर देंगे सी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के नाल, फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते सी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तेल है, मैं तेल का डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करने तो मैं की करूँगी उसकी परमिटिविटी लूँगी, पर ये डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी है, वो परमिटिविटी मैं डिवाइड कर दूँगी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी जी आप लिखी सी ना वैल्यू 8.85 वो उत्थों मैंने डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है,
ये चीज़ तुम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਓਵਰ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਏਅਰ ਲਈ ਕੱਢਾਂ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਬੱਚੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ, ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।